मुफ्ती मुर्तज़ा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तज़ा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी को दबाना ना भूलें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، جو کافر ہیں، ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے سامنے کچھ بھی، اور یہی لوگ ہوں گے دوزخ والے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ مثال اس کی جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں ایسا ہے جیسا کہ ایک ہوا ہو جس میں پالا ہو اور وہ لگی ہو ایسی قوم کی کھیتی کو جنہوں نے اپنے حق میں ظلم کیا ہو، نقصان کیا ہو، پھر وہ اس کو برباد کر دے، ہلاک کر دے، اور نہیں ان پر اللہ نے ظلم کیا لیکن انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے۔ اے ایمان والو، مت بناؤ اپنوں کے علاوہ کو رازدار، کوئی دقیقہ اٹھا کر نہیں رکھیں گے وہ آپ کی بربادی میں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم کو تکلیف میں پائے، البتہ ظاہر ہو چکی ہے ان کی دشمنی ان کے منہ سے، اور جو کچھ وہ چھپا کر رکھتے ہیں اپنے سینوں میں وہ بہت بڑی چیز ہے، بہت کچھ ہے۔ تحقیق کہ ہم نے کھول کر تمہارے سامنے آیتوں کو بیان کیا ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو، سمجھ رکھتے ہو۔ قرآن مقدس کی آپ حضرات سورہ آل عمران سن رہے ہیں، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 116 اور 117 اور 118 تین آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ قرآن کریم کے دامن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہ جانے ہمارا یہ وقت کہاں گزرتا کہاں نہیں گزرتا، لیکن یہ اللہ کا کرم اور اس کی رحمتیں اور اس کا فضل ہم سب کے اوپر ہے کہ قرآن کے آغوش میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو اس قرآن کی بدولت معاف فرمائے۔ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں، بڑے مبارکباد کے مستحق ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے اس سننے کو اور میرے سنانے کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
इससे आज से पहले जो सबक जो दर्स हुआ था, इससे पहले सबक में उन अहले किताब की मदाह थी, उन मुसलमानों की मदाह थी जो अहले किताब होने के बावजूद मजहब इस्लाम को कबूल करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा इख्तियार की थी। उन लोगों की मदाह में पिछली आयत बयान की गई थी। आज के सबक में उन लोगों को बयान किया गया जो उनके मुकाबिल, यानी जो अहले किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा जिन्होंने नहीं की, मजहब इस्लाम कबूल नहीं किया और कुफ्र पर कायम रहे, आज के सबक में अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको बयान कर रहे हैं कि उनके अंजाम, उनके हालात और उनकी आदत और उनके किए हुए अमल की क्या हैसियत है। आज के सबक में यह बयान किया जा रहा है। फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफरू लन तुगनिया अन्हुम अमवालुहुम, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया और कुफ्र पर कायम रहे, कुफ्र पर ही मर गए, चाहे उन्होंने कितनी नेकियां की हो, उन्होंने चाहे कितने अच्छे काम किए हों, कल कयामत के दिन उनके कुछ काम नहीं आएगा। उनके वो अमाल जो उन्होंने अच्छे किए हैं उन्हें नहीं बचा सकेंगे। क्यों? इसलिए कि उन अमाल की हिफाजत, अबदी हिफाजत जो हो सकती थी वो ईमान से हो सकती थी और ईमान उनके पास नहीं। हम और आप नमाज पढ़ते हैं, हम और आप रोजे रखते हैं, हम और आप ज़कात देते हैं, हज करते हैं, सदका खैरात करते हैं। इन आमाल की हिफाजत किससे होगी? ईमान से होगी, याद रखना, ईमान से होगी इन आमाल की हिफाजत। अगर आपने नमाजें पढ़ी, आपने रोजे रखे और आपके पास से ईमान खत्म हो गया, सारी नमाजें बर्बाद, सारे रोजे बर्बाद, सारे सदका खैरात बर्बाद, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि अबदी हिफाजत अगर हो सकती थी वो ईमान से हो सकती थी और ईमान आपके पास है नहीं। इसलिए काफिरों की जो आमाल हैं, काफिरों की जो आला औलाद हैं, जो उन्हें मुसीबतों पहुंचती है, जो सदका खैरात करते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, जो नेक अमल करते हैं, याद रखो ईमान ना होने की वजह से उनके वो सारे आमाल बर्बाद हो जाते हैं, हलाक हो जाते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी मिसाल देकर समझाया। आज के सबक में यूं समझाया कि एक आदमी बहुत शरीर हो, बागी हो, जालिम हो, और वो जालिम और शरीर और वो फसादी आदमी, उसने एक खेत लगाया हो, उसने एक बाग लगाया हो और वो उस बाग से, उस खेत से अपनी जरूरतों के पूरे होने की उम्मीद रखता हो। उसने न जाने कैसी कैसी उम्मीदें उसके साथ लगाई हो, मेरे काम बनेंगे, मेरे काम बनेंगे, मेरे पास खेती आएगी, मेरे काम सुधरेंगे। इस तरीके से उसने अपनी उस खेती से उम्मीदें लगाई, उम्मीदें बांधी। अचानक एक सर्द और पाले वाली हवा चली और उस पाले वाली हवा से उस जालिम और शरीर और फसादी आदमी के खेती को लगी। और जैसे ही उस खेती को लगी, जो बहुत लहलहा रही थी, जिससे उसकी उम्मीदें लगी हुई थी, जैसे ही पाले वाली वो हवा लगी, फौरन उसकी खेती सब सूख कर, जला कर, राख कर, क्योंकि पाला जो है ना खेती को जला देता है, उसकी खेती सब जल गई। अब उसकी जो उम्मीदें थी वो भी खत्म हो गई, वो उसकी जो जरूरतें पूरी होने वाली थी वो भी खत्म हो गई। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, काफिर की मिसाल है कि काफिर लोगों ने कुएं खुदवाए, यतीमों के सहारे बने, लोगों को पैसे बांटे, पानी पिलाए, लोगों को खाना खिलाए, उन्होंने बहुत अच्छे अमल किए, लेकिन उनकी हिफाजत का सामान उन्होंने इख्तियार नहीं किया, जिसको कहते हैं ईमान। अब जैसे ही वो दुनिया से जाएंगे, जाहिर सी बात है कुफ्र की हवा ने
उन सारे नेक अमलों को, उनके सारे सदका खैरात को, उनके किए हुए सारे अमल को कुफ्र की हवा ने सब जला दिए, खत्म कर दिए। यह है मिसाल काफिर की, जिसको कुरान मुकद्दस में आज बयान किया जा रहा है। आज के सबक में फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया, मजहब इस्लाम को कबूल नहीं किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नहीं की और कुफ्र पर डटे रहे, लन तुगनिया अन्हुम अमवालुहुम, हरगिज उनके माल काम नहीं आएंगे। यानी कयामत के दिन उन्होंने जो माल खर्च किए थे दुनिया के अंदर, वो कोई काम नहीं आएगा। क्योंकि कुफ्र की हवा ने सब खत्म कर दिया। वला औलादुहुम, और ना उनके औलाद काम आएगी। मिनल्लाहि शैआ, जब अल्लाह के सामने वो लोग खड़े हुए होंगे तो ना उनका माल उनको नजर आएगा, ना उनकी औलाद नजर आएगी। अब सवाल ये होता है पैदा कि जो काफिर लोग जो है, जो नेक अमल कर रहे हैं, यतीमों को खाना, यतीमों को पैसे बांटना, कुएं खुदवाना, पानी पिलवाना, तरह तरह के रिफाए आम के लिए उन्होंने न जाने कितने मुंह तैयार कर रखे हैं। तो क्या ये इनकी नेकी बर्बाद हो जाएगी? इनको नेकी का इसका अजर नहीं मिलेगा? उसका जवाब कुरान मुकद्दस में यहां पर बयान किया गया है, बल्कि ये होगा उनके लिए हमेशा हमेश की जहन्नम उनके लिए बनाई गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो काफिर लोग हैं उनका जुर्म है, तो इस जुर्म की वजह से उनको हमेशा हमें जहन्नम में अल्लाह क्यों रखेंगे? भाई कुफ्र उनका खत्म होने वाला है, मरने के बाद कुफ्र खत्म हो जाएगा, तो फिर उनकी सजा भी मुतय्यन होनी चाहिए थी कि इतने दिन उनको रहना पड़ेगा, उसके बाद उनको जन्नत मिलेगी। ये होना चाहिए था। उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये क्यों कहा है कि हमेशा हमें जहन्नम में रहेंगे? हजरत हकीम उल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने उसका जवाब खूब अच्छे तरीके से दिया है। कहा कि देखिए, ये जुर्म और सजा में मुनासिबत नहीं होती है। यानी जुर्म जितना हो इतनी उसको सजा मिले, ऐसा नहीं होता है, मुनासिबत नहीं होती है। यानी किसी आदमी ने अगर 2 घंटे चोरी की है, डकैती डाली है, और वो पकड़ा गया, और पकड़ने के बाद अब हाकिम उसको ये नहीं कहेगा तूने 2 घंटे चोरी की है, 2 ही घंटे जेल में रहे। अगर 2 घंटे की सजा सुनाते आए जज और हाकिम, तो कोई आदमी भी इसको इंसाफ कबूल नहीं करेगा कि इसने डकैती डाली और 2 घंटे डकैती की थी और 2 घंटे के लिए जेल में डाल दिया। इसको कोई भी कबूल नहीं करेगा। होना तो ये चाहिए था कि उसको 10 साल लगते, तब उसकी सजा सही है। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, यानी जिस तरह दुनिया में जुर्म और सजा में मुनासिबत नहीं है, ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां भी जुर्म और सजा में मुनासिबत नहीं है। जैसे उनका कुफ्र है ऐसे ही उनकी सजा है। फिर सवाल यह होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको हमेशा हमेशा क्यों रखेंगे, या उनके लिए इस तरह की सजा क्यों सुनाई है? असल देखिए, ये नियत के ऊपर है। ये सजा जो है हमेशा हमें जहन्नम में रहेंगे, किसके ऊपर है? नियत के ऊपर। नियत का बड़ा दखल है। मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने मिसाल देकर समझाया कि एक आदमी ने बगैर नियत के शराब पी ली, यानी उसकी कोई नियत नहीं थी, अचानक किसी ने धोखे में उसको शराब पिला दी, पानी कहकर या शरबत कह करके, तो इसको गुनाह नहीं मिलेगा, अगरचे जाहिरी सूरत गुनाह की है, शराब पी रहा है लेकिन धोखे से पिलाई।
नीयत कोई नहीं थी, तो ये आदमी गुनाहगार नहीं है, ये मुजरिम नहीं है, क्योंकि इसकी ना तो नीयत थी और ना इस बेचारे को पता था। ऐसे ही एक आदमी शराब खाने पर गया, शराब पीने के लिए, शराब खरीदने के लिए। अब शराब के दुकानदार ने उसको उठाकर कोई और शरबत दे दिया जो जायज है। शराब नहीं दी, उसने शराब मांगी कि शराब चाहिए मुझे, उसने उठा करके कोई शरबत दे दिया। तो अब इसने जो शरबत पिया है, अगरचे ये जायज था, लेकिन इसको गुनाह मिलेगी, क्योंकि इसकी नीयत ये थी कि मैं शराब पी रहा हूं। क्योंकि नीयत का, असल ईमान के अंदर नीयत का बहुत बड़ा दखल है। बिल्कुल ऐसे ही काफिर है। काफिर ने अगरचे कुफ्र जो है मुतनाही एतबार से उसने इख्तियार किया है, लेकिन उसकी नीयत यह थी कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं कुफ्र पर कायम रहूंगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जैसी उसकी नीयत थी कि जब तक जिंदा रहूंगा उस वक्त तक मैं कुफ्र पर कायम रहूंगा, बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ने उसके लिए सजा सुना दी कि जब तक तू आखिरत में रहेगा जहन्नम के अंदर पड़ा रहेगा। और मुसलमान के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखा कि मुसलमान की क्योंकि नीयत यह है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा मजहब इस्लाम पर कायम रहूंगा, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको हमेशा हमेशा के लिए जन्नत का सवाब अता फरमा दिया। उसको हमेशा जन्नत में रहना पड़ेगा, क्योंकि उसकी नीयत क्या थी, हमेशा मैं मजहब इस्लाम पर कायम रहूं। तो देखिए यहां नीयत का बहुत बड़ा दखल है। तो उसी को यहां पर कुरान करीम के अंदर फरमाया कि ना उनके माल काम आएगा ना उनकी औलाद काम आएगी, मिनल्लाहि शैया, अल्लाह के सामने कुछ भी। और वजह क्या है, उनके इन आमाल और उनके अच्छे अमल पर हिफाजत की कोई चीज उन्होंने इख्तियार नहीं की। हिफाजत की कोई चीज इख्तियार नहीं की, यानी जैसे कोई आदमी खेती वाला हो और खेती के कोई हिफाजत का कोई सबब उसने इख्तियार नहीं किया, अब अचानक उसके ऊपर बारिश पड़ी या कुछ ऐसी आफत आई और फौरन डूब गई, बिल्कुल ऐसे ही आमाल है काफिरों के। मुसलमानों के जो अमाल हैं वो ईमान की वजह से हमेशा हमेशा के लिए हिफाजत के अंदर चले जाते हैं। आप नमाज पढ़ते हो, ईमान की वजह से फौरन उनके ऊपर मोहर लगती है और अल्लाह के यहां पहुंच जाते हैं। तो ईमान की मोहर हर अमाल के लिए बेहद जरूरी है। ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं, सारी ईमान की मेहनत है। ईमान बनेगा तो अमाल बनेंगे, अमाल बनेंगे तो ईमान बचेगा। तो इसलिए फरमाया वो उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, ये लोग हमेशा हमेशा, यही लोग हैं जो दोज़ख वाले हैं और हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे।